Hello guys, so in this video we will see how we can use the D test or the Durbin-Watson test to check for autocorrelation. In the last video I told you that D statistic is calculated using summation T is equals to 2 to N U hat T minus U hat T minus 1 whole square upon summation U hat T square. Okay, so I can write this as, if I expand the numerator, so it is equal to summation U hat T square plus summation U hat T minus 1 square, okay, and then minus 2 summation U hat T minus 1 upon summation U hat T square upon summation U hat T square, ठीक है. जनरली मैंने आपको बताया था कि ऑटो कोरिलेशन टाइम सीरीज डेटा में होता है, एंड टाइम सीरीज में हम जनरली बहुत ज़्यादा ईयर्स की ऑब्जर्वेशन लेते हैं. मिनिमम 30 ईयर्स का हम, जैसे 30 ईयर्स, 30 क्वार्टर, 30 मंथ, तो मिनिमम 30 टाइम पीरियड्स का डेटा लेते हैं. तो व्हाट वी कैन से कि सिंस, अब आप यहाँ पर देखोगे कि समेशन यू हैड टी स्क्वायर एंड समेशन यू हैड टी माइनस 1 स्क्वायर में सिर्फ एक ही साल का फर्क है कि इसमें यू हैड टी स्क्वायर तक का समेशन है, इसमें यू हैड टी माइनस 1 स्क्वायर का है, ठीक है. तो सिंस समेशन यू हैड टी स्क्वायर एंड समेशन यू हैड टी माइनस 1 स्क्वायर differ in only one observation, they are approximately equal. They are approximately equal. So that means summation U hat T square is approximately equal to summation U hat T minus 1 square. ठीक है, कि ये और ये टर्म जो है approximately equal है. So D can be approximately written as, so D is approximately written as 2 because ये और ये term approximately equal है, so I can write them as 2 summation U hat T square minus 2 summation U hat T minus 1 upon summation U hat T square upon summation U hat T square. ठीक है, इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो I can write D as twice 1 minus summation U hat T minus 1 upon summation U hat T square upon summation U hat T square. ठीक है, so I can write this as this. Now हमने चेक किया था कि हमने अज्यूम किया था दैट ये वाला टेस्ट कब लगता है, व्हेन एरर टर्म्स फॉलो एन AR1 सीरीज. मतलब एरर इन पीरियड T इज सम प्रपोर्शन ऑफ एरर इन पीरियड T minus 1 plus VT. ठीक है, so now in this case, so this is a regression equation, और ये किस तरीके का है आपका बीटा, दिस इज लाइक योर बीटा 2. ठीक है, दिस इज लाइक रो इज योर बीटा 2. तो जैसे बीटा 2 की वैल्यू होती है समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. ठीक है, बीटा 2 हैट की वैल्यू होती है. सिमिलरली अगर मैं इसमें से रो हैट निकालना चाहूँ तो रो हैट की क्या वैल्यू होगी, तो रो हैट वुड बी समेशन U hat T minus 1 upon summation U hat T upon summation U hat T whole square upon summation U hat T whole square. ठीक है, या समेशन see in this case, so this is my y, this is my x variable, so it is, आप क्योंकि ये तो आपको नहीं पता होता ut और ut माइनस 1, तो आप इसको किससे अप्रॉक्सीमेट करते हो, u hat t एंड u hat t माइनस 1 से. ठीक है, तो
आप कभी रो नहीं निकाल पाते, यू ऑलवेज कैलकुलेट रो हैट. So rho hat would be summation u hat t minus 1 upon summation u hat t minus 1 whole square होगा, लेकिन approximately it would be summation u hat t whole square. ठीक है. If I write it again, see, what we are saying that ut is equals to rho ut minus 1 plus vt. ये population वाली line है. ठीक है, because we are talking about u and ut minus 1 जो कि population में होते हैं. We calculate them using sample. So u hat t is equals to rho naught u hat t minus 1 plus suppose v hat t ठीक है. कुछ ऐसा अगर हमने मॉडल लिया है और you can ignore v hat t either. So rho hat will be given by the formula summation u hat t minus 1 upon summation u hat t minus 1 square, because it is summation x y upon summation x square, which is, we have proved that it is also approximately equal to summation u hat t minus 1 upon summation u hat t square upon summation u hat t square. तो अब आप अपने d स्टैटिस्टिक में देखोगे, तो d स्टैटिस्टिक में आता है d is equal to 1 minus summation u hat t minus 1 upon summation u hat t square. So this value is approximately equal to rho hat. This value is approximately equal to rho hat. So d is equals to 1 minus rho hat. D is equals to 1 minus rho hat. Now rho hat basically we discussed कि rho तो ये है कि error in this term is some proportion of error in last period. ठीक है. So this is basically the correlation coefficient between ut and ut minus 1. ठीक है. So rho hat is the correlation coefficient. It is the for this रो जो था वो पॉपुलेशन के लिए था एंड रो हैट सैंपल के लिए. तो रो हैट इज द सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड हमें पता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है. -1 इज लेस देन इक्वल टू रो इज लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है. तो रो हैट के लिए भी वही होगा बिकॉज वो उसी का ही एस्टिमेटर है. तो डी की वैल्यूज कहाँ होगी कि अगर रो नॉट को आपने -1 डाला तो डी की वैल्यू 4 हो जाएगी एंड रो नॉट को अगर आपने 1 डाला तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है. सो व्हेन रो नॉट इज इक्वल्स टू -1 डी इज इक्वल्स टू 4. व्हेन रो नॉट इज इक्वल्स टू 1 डी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो डी की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी? 0 से लेकर 4 तक. डी की वैल्यूज होंगी 0 से लेकर 4 तक. एनी एस्टिमेटेड वैल्यू, एनी estimated d value must lie within these limits. Any estimated d value must lie within these limits. कि अगर आप किसी भी रिग्रेशन के लिए d वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो? समेशन t is equals to 2 to n u hat t minus 1 upon u hat t minus 1 square से summation t is equals to 1 to n u hat t square. If this is how you calculate your d value, तो किसी भी रिग्रेशन इक्वेशन के लिए तो ये जो वैल्यूज होंगी वो 0 से लेकर 4 तक के बीच में होंगी. Is this clear? Now हाउ डू वी मेक यूज ऑफ दिस टी वैल्यू? आपको इतना सब कुछ करना नहीं आएगा, क्वेश्चन में आपको सब गिवन होगा, बट मैं आपको सब इलस्ट्रेट कर रहा हूँ. नाउ सो व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ, यू विल हैव टू रिमेंबर दैट Durbin-Watson D-Stat diffusion rules. Durbin-Watson D-Stat diffusion rules.
तो ये टेबल आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी जब मैं भी बना रहा हूँ. So we take the null hypothesis. In this case, we take the null hypothesis H naught as no positive autocorrelation, and हम एक और null hypothesis लेते हैं which is called as H naught star. It is not an alternate hypothesis. It is एक और null hypothesis that there is no negative autocorrelation. There is no negative autocorrelation. ठीक है. अब क्या होगा कि क्वेश्चन क्या होगा उसमें डी स्टैट विल बी गिवन इन रिग्रेशन. आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा, उस एक पर्टिकुलर रिग्रेशन के लिए डी स्टैट की वैल्यू गिवन होगी. ठीक है. अब आपने क्या करना है, डी टेबल्स होती हैं. ठीक है, डर्बिन वाटसन टेबल्स होती हैं. हाउ डू डर्बिन वाटसन टेबल्स लुक लाइक? So Durbin-Watson tables look like these. तो अगर आप इसमें देखोगे तो Durbin-Watson tables इस तरीके की होती हैं. इसमें for k you are given values of dl and du. So basically आपके tables में क्या होता है, dl and du आपके d statistic की लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट गिवन होती है. ठीक है, ये टेबल ऐसी है कि आपको इसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डीएल डीयू की गिवन होती है एंड यू हैव टू चेक फॉर. इसमें आप देखोगे कि इसमें आप देखोगे जैसे k इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू 3, इनके लिए दे रखी हैं ये वैल्यू. ठीक है. सो व्हाट इज k हियर? आपने यू हैव टू रिमेंबर k इज द नंबर ऑफ explanatory variables. K is number of explanatory variables excluding error term. Number of explanatory variables excluding intercept term. तो आपने इसमें intercept term को exclude करके जो आपके number of variables बचते हैं वो K कहलाते हैं. ठीक है, ये आपने याद रखना है. ये बाकी दूसरे जो हमने मेथड डिस्कस किए हैं एक्टर टर्म से अलग है K. ठीक है, तो आपने क्या करना है, टेबल से dl du आएगा. ठीक है, these limits are for a given level of significance. जनरली जो मैं आपको टेबल दूंगा तो उसमें हम अल्फा 5% लेंगे. 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए ये वैल्यूज गिवन होंगी. 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए ये वैल्यूज गिवन होंगी. ठीक है. नाउ सो हाउ डू यू डिसाइड नाउ? तो डर्बिन वाटसन ने ये हमें जो है डिसीजन रूल दिया है. यहाँ पर है d की वैल्यू आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे. दिस इज 0, दिस इज d लोअर लिमिट, दिस इज d अपर लिमिट, दिस इज 4 minus du and this is 4 minus dl. This is 4 minus dl. ठीक है. तो अगर आपकी जो कैलकुलेटेड डी स्टैटिस्टिक आई वो 0 से dl के बीच में है तो उसमें यू हैव टू रिजेक्ट h नॉट. So what is h naught? H naught is no positive autocorrelation. And h naught star is no negative autocorrelation. तो अगर 0 से dl के बीच में आपकी डी स्टैटिस्टिक आ रही है तो यू विल रिजेक्ट h नॉट. तो अगर आप h नॉट को रिजेक्ट कर रहे हो, दैट देयर इज नो पॉजिटिव ऑटोकोरिलेशन, इसको आप रिजेक्ट कर रहे हो. सो दैट मीन्स देयर इज एविडेंस ऑफ पॉजिटिव ऑटोकोरिलेशन. बिटवीन 0 टू dl. ठीक है. dl टू du के बीच में अगर आपकी कोई वैल्यू आती है देन हम उसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाते कि ऑटोकोरिलेशन है कि नहीं. तो दिस इज अ जोन ऑफ इनडिसीजन.
दिस इज अ जोन ऑफ इनडिसीजन. तो बिटवीन DL एंड DU अगर आपकी D स्टैटिस्टिक की वैल्यू आती है तो हम उस पर कमेंट नहीं कर पाते. ठीक है. बिटवीन DU एंड 4 माइनस DU अगर वैल्यू आती है तो वी से do not reject H0 और H0 स्टार कि आप H0 को रिजेक्ट भी मत करो और H0 स्टार को भी रिजेक्ट मत करो. यानी कि DL से लेकर 4 माइनस DU तक की अगर आपकी वैल्यू आती है तो देर इज नो ऑटो कोरिलेशन. ठीक है. सिमिलरली आप नेक्स्ट 4 माइनस DU और 4 माइनस DL के बीच में वैल्यू आती है. अगेन दिस इज अ जोन ऑफ इनडिसीजन कि आप इसमें भी कुछ आप कमेंट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट से कि ऑटो कोरिलेशन है कि नहीं है. एंड अगर आपकी 4 माइनस DL और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो ये 0 से स्टार्ट होकर D की मैक्सिमम वैल्यू 4. तो 4 माइनस DL और 4 के बीच में अगर वैल्यू आती है तो इन दिस केस वी रिजेक्ट H0 स्टार. तो अगर आप H0 स्टार को रिजेक्ट कर रहे हो so that means you are saying there is evidence of in this region there is evidence of negative autocorrelation. ठीक है. So this is you have to remember, easy है आपको remember करना. So it is 0 DL DU 4 minus DU 4 minus DL 4 first वाले region में reject H0, then zone of indecision, then no autocorrelation, zone of indecision, then reject H0 star. ठीक है. So this is easy. Let me just do an example and it will be more clear to you. Question: consider the regression that y hat t is equals to 0.4529 minus 0.0041 t, r square is equals to 0.8252, d is also 0.8252 and n is equals to 16. Now check for autocorrelation in the model. ठीक है. Now so in this model k कितना होगा? k मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. सो ये t इज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. एक इंटरसेप्ट है और एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, लेकिन k इज नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्सक्लूडिंग इंटरसेप्ट टर्म. सो देयर इज ओनली वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्सक्लूडिंग इंटरसेप्ट टर्म. ठीक है. n 16 है और आपने अल्फा जो है 5% ही लेना है. ठीक है. So your null hypothesis is that there is no positive autocorrelation. Alternate hypothesis is that there is no negative autocorrelation. ठीक है. अब आपने टेबल में जाके k is equals to 1 and n is equals to 16 पे DL and DU की वैल्यूज देखनी है. तो ये हमारी टेबल है. k is equals to 1 and यहाँ आप देखोगे n is equals to 16. तो n is equals to 16 पे DL is 1.106 and DU is 1.37. ठीक है. So for n is from tables, for n is equals to 16 and k is equals to 1, DL is equals to 1.106 and DU is equals to 1.371 and DU is equals to 1.371. ठीक है. Now you have to construct your table. ये हर क्वेश्चन में आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी. तो ये 0 है, ये 4 है. पहली वैल्यू क्या होती है? DL होती है. सो DL इज इक्वल्स टू 1.106. अभी हमने निकाला टेबल से. ठीक है. देन DU इज इक्वल्स टू 1.371. फिर 4 माइनस DL, so 4 minus DU, so 4 minus DU is equals to
4 minus 1.1371, 4 minus 1.371, so it is 2.629. ठीक है, then 4 minus dl, which comes out to be I guess 2. चेक कर लेना, 2.894 आ रही है, 2.894 आ रही है. ठीक है, अब क्या है, आपको जो क्वेश्चन में डी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करके दे रखा है वो है 0.8252. 0.8252. तो अब 0.8252 कहाँ आएगा, ये तो इंक्रीज कर रहा है 0 से 4, तो 0 से 1.106 के बीच में ही आपका जो डी स्टैटिस्टिक गिवन है, वो है 0.8252. ठीक है, तो वो इसमें आएगा. और इस रीजन में क्या होता है, व्हाट डू यू डू इन दिस रीजन, यू रिजेक्ट H0. And what is H0? H0 is कि there is no positive autocorrelation, तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो. So there seems to be, so we reject H0, which means there seems to be positive autocorrelation in the data. There seems to be positive autocorrelation in the data. So this is how you will get questions in your exam. D statistic calculate होगा, बस आपने टेबल से DL DU देख के इस डिसीजन टेबल में उसको पुट करना है, ठीक है. So this is how you detect autocorrelation. One was graphical method and second is your Durbin-Watson test. Now just the last topic left now, which is remedies for autocorrelation. I'll just discuss one remedy to illustrate how we can remove autocorrelation from the data. और भी होती हैं, but आप अभी बस illustration के लिए है. So assuming yt is equals to beta 1 plus beta 2 xt plus ut. So this is your model regression. This is our original regression model. और इस मॉडल में this model suffers from autocorrelation problem. ठीक है, this model suffers from autocorrelation problem हमने डिटेक्ट कर लिया. And error terms are autocorrelated. And follow AR1 scheme. So for example, your error terms are of the form ut is equals to rho ut minus 1 plus vt, which is your equation 2. And here rho lies between, because it is the correlation coefficient, it lies between -1 and 1. And ये भी एक रिग्रेशन है, ही है. इसमें जो आपका एरर टर्म है vt, तो vt follows OLS. vt में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ut में दिक्कत है ना, कि ut OLS को फॉलो नहीं करता. vt follows OLS. मतलब it follows OLS मतलब को vt follows classical linear regression model assumptions. की दिक्कत ut वाले रिग्रेशन में है, vt वाले में नहीं है, ठीक है. Now अब assuming rho is known, अगर हमें रो पता है, जो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है एरर्स के बीच में, उनका ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर हमें पता है, देन ओनली हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. अज्यूमिंग रो इज नोन, वी कैन ट्रांसफॉर्म equation 1 so that in the transformed model error term is free from autocorrelation. अगर हमें रो पता है, तो हम जो अपना फर्स्ट जिस ये मॉडल है जिसमें ऑटो कोरिलेशन है, उसको इस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि वो ऑटो कोरिलेशन फ्री हो जाए. कैसे? लेट मी इलस्ट्रेट द स्टेप्स नाउ. So this is my model. Yt is equals to beta 1 plus beta 2 xt plus ut. ठीक है. Now I write this was equation 1. Writing equation 1 with 1 period lag.
राइटिंग इक्वेशन 1 विद 1 पीरियड लैग, कि हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को एक पीरियड पहले लिख रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, t विल बी रिप्लेस्ड बाय t माइनस 1, t इज रिप्लेस्ड बाय t माइनस 1, बीटा 1 में तो t नहीं है तो वो बीटा 1 ही रहेगा, प्लस बीटा 2 xt माइनस 1 प्लस ut माइनस 1 प्लस ut माइनस 1, ठीक है, ut minus 1. So this was equation 1. Equation 2 क्या था, that ut is equals to rho ut minus 1 plus vt. This was equation 2, and this is new equation which is equation 3. Next step is, since you know rho, हम assume कर रहे हैं कि हमें rho पता है, so multiplying equation 3 by rho, multiplying equation 3 by rho on both sides. मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय रो ऑन बोथ साइड, से आपने दोनों साइड इसको इक्वेशन 3 को रो से मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट यू गेट, दैट रो बाई टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू रो बीटा 1 प्लस रो बीटा 2 एक्स टी माइनस 1 प्लस रो यू टी माइनस 1, ठीक है। जैसे आपने इक्वेशन 3 को हर जगह जो है रो से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस बिकम्स इक्वेशन 4. Now if you subtract 1 minus 4, if you subtract equation 1 जो कि हमारा ओरिजिनल मॉडल था minus 4th equation, so you get yt minus rho yt minus 1 is equals to beta 1 is equals to beta 1 1 minus rho plus beta 2 xt minus rho xt minus 1 प्लस आप चेक करोगे तो वो क्या आएगा, यू विल गेट ut माइनस रो ut माइनस 1, ut माइनस रो ut माइनस 1, ठीक है, ut माइनस रो ut माइनस 1. सो नाउ आई एम राइटिंग दिस yt माइनस रो yt माइनस 1 एज y स्टार t, मतलब हमने एक ट्रांसफॉर्म मॉडल लिया जिसमें हम नया yt वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं, दैट इज योर y स्टार t, ठीक है. It is equal to, this is equal to beta 1 into 1 minus rho is beta 1 star, then this is plus beta 2 star x star t, and अब जो ये है ये क्या है, ut minus rho ut minus 1 क्या हुआ, सेकेंड से ut minus rho ut minus 1 क्या हो गया, vt हो गया, ut minus rho हो गया vt, ठीक है. तो व्हाट इज y स्टार t, y स्टार t इज yt minus rho yt minus 1. आपने एक नया सीरीज जनरेट किया. बीटा 1 स्टार इज बीटा 1 1 minus rho, ठीक है. बीटा 2 स्टार इज पुराना वाला बीटा 2 ही है, बीटा 2 स्टार तो आपका जो है पुराना वाला बीटा 2 ही है, ठीक है. एंड एक्स स्टार टी इज एक्स टी माइनस रो एक्स टी माइनस 1. अब ये ट्रांसफॉर्म करने से क्या हुआ कि इस ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल में जो आपका एरर टर्म है, क्योंकि वीटी में ऑटो कोरिलेशन नहीं था, ऑटो कोरिलेशन यूटी में था, तो ट्रांसफॉर्म मॉडल, द ट्रांसफॉर्म मॉडल has error term vt, has error term vt which is free from auto correlation, अब आप ये कहोगे कि हमने तो मॉडल ही बदल दिया. कि आपने मॉडल बदला, लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए होती है, आपको स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए होती है. तो बीटा 2 स्टार तो अभी भी बीटा 2 ही है, तो आप जब ये मॉडल को ऐसे रन करोगे तो जो आपका बीटा 2 स्टार आएगा वही आपका बीटा 2 होगा. तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा 2 जो आपको चाहिए होता है, ठीक है. और बीटा 2 हाँ चाहिए, ये तो पॉपुलेशन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल से करोगे सो विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा 2, ठीक है. तो आपका मेन पर्पज क्या था कि आपने अपने मॉडल को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लिया कि नाउ इट इज फ्री फ्रॉम ऑटो कोरिलेशन, बिकॉज द एरर टर्म is now Vt, which is free from autocorrelation. But this can be achieved only if rho is known. So this is one of the illustration how we remove autocorrelation from our data, ठीक है, from a regression model. So this completes the course.
uh, there are 2-3 topics left which are also extremely important, but I'm skipping them. I'll be taking those topics later in applied econometrics for my eco students who opt for that. It is an optional in semester 5. And BBA students also, if you get time, you can attend some of those classes if you are interested. I hope. Okay, thank you.